Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, student, welcome back to your EVS class. I am teaching you chapter number 11. Today, date is 8 January, and name of the chapter is A Friendly Neighborhood. So, student, take out your EVS book. We have already, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So, student, in the previous video I explained you what is the difference between neighbor and neighborhood services, how these neighborhood services make our life more and more comfortable. Neighborhood services like school, hospital, dispensary, market, police station, bank, post office, park, etc. How these neighborhood services make our life more and more comfortable. So these are the things which I explained you in the previous video, and after that we are doing the book exercises of the chapter 11. Question number A, tick the correct option. This we have already completed in the book, and we are doing question number B, that is fill in the blanks. Question number 1, a dash delivers letters, cards, telegrams and money orders. So what is the answer? The person who deliver letter, card, telegram and money order door to door, the name of the person is a postman. So postman delivers letters, money orders, telegrams and cards. This question we have already completed in the book. Now let's start with the second. We keep our money we keep our money and precious thing precious things safely in a dash. So we keep our money and precious thing. Precious things means बेटा जो कीमती चीज़ें होती हैं, जैसे आपके घर में आपकी मम्मी की ज्वेलरी है, तो ये सब चीज़ें भी हम लोग सेफली रख सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों के चोरी होने का खतरा होता है।
तो घर में रखने से अच्छा है कि आप इसे सेफली रख सकते हैं. एंड द प्लेस where we keep our money and precious things safely in a, and that place is known as bank. That place is known as bank, because in bank you can keep your money safe also, even your precious things like jewelry. You get the locker in the bank, but for that you have to pay some money. Is it clear? You can keep your precious things in the bank in a locker, but for that locker you have to pay some money to the bank also. So the right answer is bank. Note down the answer. Now question number 3. We should not pluck flowers or plants when we go out to play in a. We should not. We should not pluck. We should not pluck flowers. We should not pluck flowers or plants when we go out, when we go out to play in a dash. So student, second is we should not pluck flower or plants when we go out to play in a dash. So where, what is the name of the place where you see lot of flowers, flowering plants? So it is told in this question, प्लक मतलब होता है तोड़ना, हमें नहीं तोड़ना चाहिए फ्लावर्स को और पेड़ों को. ठीक है, तो नाउ स्टूडेंट टेल मी what is the name of the place where you will see lot of flowers? So the name of the place is park. Park is the place where we see lot of flowering plants. So whenever you go to the park, don't pluck the flowers or plants. Is it clear? Whenever you go to the park or you are playing in the park, then never pluck flowers or plants. So the name of that place is park. क्योंकि जब आप लोग ओपन ग्राउंड्स में खेलने जाते हो, ग्राउंड्स में आपको फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं मिलते हैं. ओपन ग्राउंड्स में जब आप बड़े बड़े ग्राउंड्स में खेलने जाते हो, ओके, सो आपको प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स कहाँ देखने को मिलेंगे? दैट प्लेस इज नोन एज पार्क. उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? वी से पार्क. नेक्स्ट, fourth one, it is our duty to keep our dash clean. It is
our duty, it is our duty to keep our dash clean. So student, you have seen that your mother always clean the house. Is it clear? She throw all the dustbin, she throw all the garbage इन द डस्टबिन. आप देखते होगे आपकी मम्मी घर को बिल्कुल नीट और क्लीन रखते हैं. ठीक है, घर में जो भी कूड़ा होता है, वेदर इट इज अ वेजिटेबल पील्स और फ्रॉम टॉफीज रैपर्स और मैनी अदर थिंग्स विच कम इन wrappers, don't throw them here and there. That things should be thrown into the dustbin. तो आप देखते होंगे कि आपकी मम्मी घर को बिल्कुल नीट और क्लीन रखते हैं. ठीक है, जितना भी घर का कूड़ा होता है, जो गार्बेज इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें प्रॉपरली वो मम्मी आपकी डस्टबिन में डालती हैं. और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट डस्टबिन इज कवर्ड. वो डस्टबिन ओपन नहीं होता है. अगर वो डस्टबिन ओपन होगा तो उसमें बहुत से कीटाणु आ जाएंगे, जर्म्स आ जाएंगे. ठीक है, सो द डस्टबिन इन विच योर मदर थ्रो द गार्बेज, सो व्हाट शी डू, दैट डस्टबिन इज आल्सो कवर्ड. ठीक है, सो इन द सेम मैनर, एंड व्हाई योर मदर डू ऑल दिस थिंग्स. Your mother do all these things so that you are healthy and fit, जिससे कि आप healthy और fit रहो. But student, all the time we are in our houses? No. Many times we have to go out from the house also. And that places are known as our neighborhood places. Is it clear? That places are known as our neighborhood places. So that places also should be neat and clean. ठीक है, वो प्लेसेस भी क्लीन होनी चाहिए, तभी आप फिट और हेल्दी रह सकते हो. तो इट इज आवर ड्यूटी टू कीप आवर डैश क्लीन. हमें अपनी क्या क्लीन रखनी चाहिए? सराउंडिंग्स. नेबरहुड भी लिख दोगे तो भी राइट आंसर है. सराउंडिंग्स लिखोगे दैट इज आल्सो द राइट आंसर, क्योंकि हम लोग हमेशा अपनी नेबरहुड प्लेसेस या सराउंडिंग्स में जाते हैं. जैसे आप छोटे बच्चे हो, दिस टाइम यू आर नॉट डूइंग द जॉब, बट यू डेली गो आउटसाइड योर हाउस टू योर स्कूल, और विद योर पेरेंट्स यू गो टू द मार्केट, और यू गो टू द मॉल्स टू वॉच द मूवी. सो फॉर मैनी पर्पस, डिफरेंट पर्पस से हम लोग मैनी टाइम्स वी गो आउटसाइड आवर हाउसेज आल्सो. So we must keep our surroundings clean. अगर सराउंडिंग क्लीन होगी बेटा तो आप फिट और हेल्दी रहोगे. जैसे आप जहाँ रहते हो, आपके घर के अगल बगल मान लो पानी खड़ा हुआ है, स्टेगनेंट वाटर है, तो आप लोग को मैंने बताया ना, स्टेगनेंट वाटर इज ए ब्रीडिंग प्लेस फॉर द मॉस्किटोज. मच्छर जो होते हैं ना, उनको मॉस्किटोज बोलते हैं इंग्लिश में. ठीक है, और ये बहुत ही डेंजरस होते हैं. इनके काटने से ड्यू टू द बाइटिंग ऑफ द मॉस्किटो मे बी यू आर सफरिंग फ्रॉम मलेरिया और डेंगू. सो डोंट अलाउ स्टेगनेंट वाटर ओके इन द सराउंडिंग्स आल्सो. इज इट क्लियर? एंड when we collect the garbage from our houses, so please put that garbage in the dustbins, because time to time vehicles, municipal committee vehicles are coming, they are collecting all the garbage and then they decompose that garbage in the right place. So
We must, it is our duty to keep our surrounding clean. It is our duty to keep our surroundings clean. Is it clear? Now, next question is, neighborhood services have made our life dash and dash. Okay. Neighborhood services note down the next point. Neighborhood services neighborhood services neighborhood services have made our life dash and dash. So when we are talking about the neighborhood services, students, when we are talking about the neighborhood services, what are these neighborhood services? These neighborhood services like school, hospital, bank, post office, police station, hospital, park, these all are known as neighborhood services. And are these neighborhood services has made our life easier and comfortable. इन नेबरहुड सर्विसेज से हमारी लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल हो गई है ना, क्योंकि देखो आप अपने नेबरहुड में जाते हो, वहाँ आपको मार्केट भी है, क्योंकि डेली नीड्स की थिंग, जैसे आपको वेजिटेबल लेना है, फ्रूट्स लेना है, fresh vegetable, fruits, milk, bread, from where you will collect all these things you will get in the market. तो आपके नेबरहुड में मार्केट है तो आपके लिए अच्छी बात है. बाई चांस इफ समवन इज सिक इन द फैमिली, सो आपके नेबरहुड में क्या होना चाहिए, हॉस्पिटल भी होना चाहिए, so that you can take the patient to the hospital and that patient, doctor will see the patient and after that he will write the medicine for that patient. For example, by chance and for maintaining लॉ मेंटेन करने के लिए सब नेबरहुड में क्या होते हैं, पुलिस स्टेशन होते हैं. इज इट क्लियर? और इन द सेम मैनर बैंक है, इन अ बैंक यू कैन डिपॉजिट योर मनी, you can kept your precious things also in the bank. So student, these neighborhood services has made our life very easier and comfortable. Okay, so neighborhood services have made our life easier and comfortable. So neighborhood services have made our life easier and comfortable. नेबरहुड सर्विसेज की वजह से हमारी लाइफ ईजियर भी हो गई है और कंफर्टेबल भी हो गई है. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सी, ट्रू और फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सी, ट्रू और फॉल्स.
क्वेश्चन नंबर सी, ट्रू और फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 1, when you are sick you go to the bank. When you are sick you go to the bank. So student, so the question is, when you are sick you go to the bank. So is it right answer? Student, when we are sick, sorry, you go to the bank. When we go to the bank to deposit our money or to take the money or withdrawal money from the bank or to kept the precious things in the bank. हम बैंक क्यों जाते हैं? या तो हम अपनी मनी वहां डिपॉजिट करा सकते हैं, डिपॉजिट मतलब जमा करा सकते हैं, ठीक है, या तो हम वहां से मनी कलेक्ट भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी करा सकते हैं, या तो हम अपनी कीमती चीजों को वहां रख सकते हैं, इसलिए हम बैंक में जाते हैं. इज इट क्लियर? लेकिन यहां क्या बोल रहा है? व्हेन यू आर सिक यू गो टू द बैंक. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि बैंक हम क्यों जाते हैं? मनी डिपॉजिट करने या मनी निकलवाने जाते हैं, या अपनी प्रीशियस थिंग्स को बैंक में सेफली रखने के लिए जाते हैं, ठीक है. सो दिस इज अ फॉल्स. सो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट. और इसे कह रहा है व्हेन यू आर सिक, तो सिक होने पे बेटा हम लोग कहां जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज सिक इन योर फैमिली देन वी टेक दैट पेशेंट टू द हॉस्पिटल. अगर घर में बेटा कोई बीमार हो जाता है तो हम लोग किसके पास उसको लेके जाते हैं? पेशेंट को हॉस्पिटल में, क्योंकि हॉस्पिटल में कौन होते हैं? डॉक्टर होते हैं. डॉक्टर पेशेंट को देखते हैं, ठीक है, पता लगाते हैं कि he is suffering from which type of a disease, and after examine they give the right medicine, ठीक है, उसके बाद वो उसको पेशेंट को राइट मेडिसिन देते हैं. सो व्हेन वी आर सिक मतलब हम जब बीमार होते हैं, व्हेन वी आर सिक वी गो टू द हॉस्पिटल, ना कि बैंक में जाते हैं. दैट इज द रीजन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके. Now question number 2. All neighborhoods have cinema halls. Okay. All neighborhood हॉल्स. ओके. कह रहा है जितने भी नेबरहुड प्लेसेस हैं वहां सब पे सिनेमा हॉल्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सिनेमा हॉल. सो दिस इज द प्लेस वेयर वी गो टू वॉच द मूवी. कोई फिल्म देखनी हो तब हम सिनेमा हॉल्स में जाते हैं. बहुत बड़ी स्क्रीन में आप देखते हो मूवी. इज इट क्लियर? So when you have to watch a movie then we go to the cinema halls.
सो द क्वेश्चन इज ऑल नेबरहुड, जितने भी नेबरहुड होंगे, नेबरहुड मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये किसी का भी पार्ट हो सकता है। नेबरहुड इज ए पार्ट ऑफ ए विलेज, और इट इज ए पार्ट ऑफ ए टाउन, और इट इज पार्ट ऑफ ए सिटी और बिग सिटीज। ऐसा नहीं है कि नेबरहुड कोई पार्टिकुलर में होता है, या तो विलेज में, या तो टाउन में, सिटी में, या बिग से, किसी का भी पार्ट होता है, किसी का भी पार्ट हो सकता है नेबरहुड प्लेसेस। ठीक है भाई, लोग गांव में भी रहते हैं, छोटे शहरों में भी रहते हैं, बड़े शहरों में भी रहते हैं, पीपल हर जगह रहते हैं ना बेटा। आपने देखा होगा हमारी कंट्री में, या तो आप भी जब आपको जब गर्मी की छुट्टियां होती होंगी तो आप अपने विलेजेस जाते हो ना, अपने दादा दादी के घर जाते हो ना, छुट्टियों में रिलेटिव्स के घर जाते हो ना। हम आप लोग क्या करते हो, सर पूछते हैं कि बेटा आप लोग समर वेकेशन में कहाँ जाएंगे, कुछ बच्चे बोलते हैं हम ये शहर विजिट करने जाएंगे, कुछ बच्चे बताते हैं कि हम समर वेकेशन में कहाँ थे, ग्रैंडफादर हाउस, विलेज गए थे अपने। ठीक है, तो नेबरहुड इज ए पार्ट ऑफ विलेज भी हो सकता है, टाउन्स भी हो सकता है, सिटीज भी हो सकता है, एंड बिग सिटीज आल्सो। ठीक है, सो ऑल नेबरहुड हैव सिनेमा हॉल्स। इस क्वेश्चन में बोल रहा है जितने भी नेबरहुड प्लेसेस हैं सब में सिनेमा हॉल्स होते हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, सिनेमा हॉल्स बहुत जगह होते हैं, लेकिन व्हाट ही इज सेइंग इन द क्वेश्चन, इस स्टेटमेंट में क्या दिया है कि ऑल द नेबरहुड हैव सिनेमा हॉल्स, सो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, Rahul and Fatima are good neighbors. Rahul and Fatima are good Rahul and Fatima are good neighbors. Okay. So it is given in your book. Firstly, neighbors. Neighbors means the houses near to your houses and the families living in that houses. So what is the relation of that families with you that are known as your neighbors? जैसे बेटा आप रहते हो ना अपने घर में, आपके अगल बगल भी बहुत से घर होते हैं, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज रहती हैं, तो उन लोगों से आपकी क्या रिलेशन है, उन लोगों से आपकी क्या रिलेशन है, वो आपके क्या लगेंगे, रिलेटिव्स लगेंगे? नहीं, वो आपके घर के बगल में रहते हैं, इसलिए वो आपके नेबर्स लगेंगे। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज राहुल एंड फातिमा आर गुड नेबर, दोनों अच्छे नेबर्स हैं। सो जब मैंने तुम लोग को स्टोरी, ये बुक में जब स्टोरी बताई थी और उसमें एक पैराग्राफ आया था हेल्पिंग वन अनदर एज ए नेबर, हमें एक दूसरे की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, हमें अपने नेबर्स के संग पोलाइट रहना चाहिए। इज इट क्लियर? सो वी शुड हेल्प आवर नेबर्स। ओके, सो जैसा कि स्टोरी में भी बताया था कि व्हेन फातिमा मदर वाज सिक, देन राहुल मदर हेल्प फातिमा टू टेक केयर ऑफ हर, एंड इन द सेम मैनर at the time of a birthday, Rahul birthday, then Fatima mother helps Rahul mother to prepare snacks. So what does this story show? Both the neighbors are helping each other. So it is given in the question, Rahul and Fatima are good neighbors. Yes, this is the true statement. Rahul and Fatima are good neighbors. Okay student, thank you.